Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are with the new video lecture in which we will discuss the most important topic of circulatory system, that is systemic and pulmonary circulations. इससे पहले कि हम टॉपिक को डिस्कस करें, यू आर रिक्वेस्टेड कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर टॉपिक और टुडेज लेक्चर, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। बिफोर स्टार्टिंग what actually systemic and pulmonary means, we must know what is this circulation. ये circulation अगर है तो है क्या, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि what is systemic and what is pulmonary circulation. When we talk about circulation, जब भी हम circulation की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, that something is moving, circulating, that is movement to and fro. मीन्स कि जब कोई भी चीज़ किसी एक जगह से मूव करे टू द नेक्स्ट पॉइंट और किसी दूसरी जगह तक, हम कह सकते हैं दैट वाया एनी पाथ, वाया एनी रूट द ऑब्जेक्ट, और हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रहा है किसी पाथ से फ्रॉम वन प्लेस और वन पॉइंट टू अनदर प्लेस और अनदर पॉइंट. सेम इज़ द केस इन दिस सर्कुलेशन. व्हेन देयर इज मूवमेंट टू and fro from a starting point and till back to the starting point in a closed circuit, एक बंद हिस्से में, in a closed circuit, when there is movement of blood, in case of circulation in the human beings, we say that this is the circulation. अब हम आराम से ये कह सकते हैं कि सर्कुलेशन होती है खून का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना हम सीधे कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. तो अब जब हमें समझ आया कि देट व्हाट इज दिस सर्कुलेशन, नाउ वी मस्ट नो what is systemic circulation and what is pulmonary circulation. These two important things we have to discuss here, and the whole process, this depends on these two definitions. One is systemic circulation. Circulation जब हमने देखी that it is simply the movement, and in case of systemic circulation, movement of blood, that means खून का चलना, खून का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना between the heart and the rest of the body. means जब हमारे जिस्म में खून हार्ट से पंप होके पूरे जिस्म में, मेरे सर में, मेरे हाथों में, मेरे टांगों में, मेरे एब्डोमेन में, मेरे ट्रंक में, एवरीवेयर जहां भी इसको जाना होगा एक्सेप्ट द हार्ट इटसेल्फ, यानी कि या रेस्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट ये एक्सेप्ट नहीं कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द बॉडी जो भी है इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं. दैट वी कैन से द मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट से ब्लड जा रहा है रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक to the heart, that is known as the systemic circulation. Now is pulmonary circulation. Circulation, movement of blood between the heart and the lungs. Pulmonary और systemic में क्या फ़र्क है? अब यहाँ पर movement of blood हो रहा था from heart to the rest of the body, but here the movement of the blood between the heart and the lungs means जब blood pump होता है from the heart, from the chambers of the heart, and it reaches to the lungs. For what is their purpose, I will discuss in the actual process of this. तो हम इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि that it is pulmonary circulation. Movement जब खून का movement हो from heart to the lungs, means heart से blood जा रहा है lungs की ओर, that movement of blood is known as the pulmonary circulation. That we discussed first about the circulation, and after that circulation we discussed what is systemic circulation and what is pulmonary circulation. Systemic means here blood circulation in the body, and pulmonary means, pulmonary means lungs. Now is the actual process, but here two important things we have to discuss. One thing, this whole process
occurs in a closed circuit. Closed circuit means that the amount of blood from one circulation becomes we can say the output of one system, output of one circulation becomes the input of the another circulation. Means जो output systemic से जा रहा है वो pulmonary का इनपुट बन रहा है, या पल्मोनरी का जो आउटपुट बन रहा है वो सिस्टमिक का इनपुट बन रहा है. दैट मीन्स दिस इज क्लोज्ड सर्किट. प्लस जो अब इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हाउ दिस प्रोसेस ऑकर्स. ये प्रोसेस सारा कैसे होता है और कहां से स्टार्ट होता है. अगर हम देखें तो वी मस्ट नो दैट द हार्ट इज हैविंग द 4 चैम्बर्स, द 2 राइट एंड द 2 लेफ्ट. From the right side, it is having the chambers like right atrium and right ventricle, and on the left side, it is having the left atrium and left ventricle. Whole process occurs with the help of the pumping effects of these chambers. सारा जो process है, जब भी atrium या ventricles पंप करते हैं ब्लड को, इजेक्ट करते हैं ब्लड को, तभी ये सारा प्रोसेस मुमकिन है. तो अगर हम स्टार्ट करें इस पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो हम राइट एट्रियम से बात करें तो राइट एट्रियम एक रिसीविंग स्टेशन होता है फ्रॉम द वेनस सर्कुलेशन. जब ब्लड एक बार पंप हो जाता है तो अल्टीमेटली मान लो कि मेरी बॉडी में ब्लड चल रहा है और अल्टीमेटली हार्ट का काम यहाँ से स्टार्ट होता है. सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava and coronary sinus, these are the pipelines. Simply हम कह सकते हैं these are the pipelines which act and bring blood to the right atrium. जो हार्ट का जो चैम्बर राइट वाला है, राइट साइड का रिसीविंग स्टेशन जो एक्ट करता है दैट इज राइट एट्रियम. यहाँ जो भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब भी सर्कुलेशन होती है तो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन होती है. ये राइट एट्रियम और वी कैन से द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और सॉरी राइट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज द पंपिंग स्टेशन फॉर द deoxygenated blood, and the left side of the heart acts as the pumping station for the oxygenated blood. Means oxygenated blood is supplied via the left side of the heart, and the deoxygenated blood is regulated via the right side of the heart. So what we see here, that is right atrium acts as the receiving station for the deoxygenated blood. Means deoxygenated blood यहाँ पे आता है, deoxygenated blood आता है from the superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Now the important thing is where from the blood comes to superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. It is important. Superior vena cava above the level of the heart. जब हम हार्ट की अपर लेवल देखते हैं, that means हेड देखते हैं, then it receives the blood, it collects the blood from the upper part of the upper surface of the body, that is above the level of the heart. Means it brings the blood from the level up to the right atrium. Now is the inferior vena cava. Inferior vena cava brings the blood from the lower parts of the body. जो हार्ट की जो लोअर लेवल है उससे, मीन्स ट्रंक से, लोअर एक्सट्रीमिटी से ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड चैम्बर रिसीविंग स्टेशन में कलेक्ट करता है. नाउ इज द कॉरोनरी साइनस. ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है जो हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं, वो हमें डिस्कस करना है कॉरोनरी सर्कुलेशन या जो सर्कुलेशन इन द हार्ट इटसेल्फ. दो कॉरोनरी साइनस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट. जो रिसीव ब्लड करता है हार्ट खुद, वो वापस लाने की काम किसका है, दैट इज कॉरोनरी साइनस. दीज थ्री ब्रिंग्स द ब्लड, सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम द अपर पार्ट्स, inferior vena cava from the lower parts, and the coronary sinus from the heart muscles, brings the blood to the right atrium, which acts as a receiving station for deoxygenated blood. And you all know from the basic structure of the heart that right atrium, between the right atrium and the left atrium, there is a valve which regulates the flow of blood from right atrium to the right ventricle. That is known as the tricuspid valve.
ये वैल्यू ही रेगुलेट करता है, गार्ड करता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और ये जो फ्लो मेंटेन करता है, फ्लो रेगुलेट करता है बिटवीन द टू चैम्बर्स। व्हेन राइट एट्रियम हैव रिसीव्ड एनफ अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम दीज वेन्स, फ्रॉम दीज रिसीविंग चैम्बर्स, देन वाया द ट्राइकास्पिड वैल्यू, इस ट्राइकास्पिड वैल्यू के जरिए से राइट एट्रियम आफ्टर हैविंग ए पंपिंग एक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो ब्लड चला जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। हियर राइट वेंट्रिकल आल्सो एक्ट्स एज अ रिसीविंग स्टेशन फॉर राइट एट्रियम बट फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यही आगे राइट वेंट्रिकल में जाता है बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स ऑफ द राइट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो राइट वेंट्रिकल का यहाँ पर फिर एक काम इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज व्हेन देयर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मीन्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जब होती है राइट वेंट्रिकल की तो इससे ब्लड इजेक्ट होता है इनटू द पल्मोनरी वैल्यू। पल्मोनरी ट्रंक मीन्स पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम कहते हैं, ये रिसीव करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से वाया द पल्मोनरी वैल्यू इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड चला जाता है। पल्मोनरी ट्रंक एट लास्ट जब राइट वेंट्रिकुलर मीन्स पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आ जाता है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी ट्रंक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, then the right ventricular blood, that is deoxygenated blood, is directly transported to the lungs via the pulmonary trunk। मतलब ये एक जरिया होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने की। जब अब बात करते हैं लंग्स की, लंग्स में आखिर क्या होता है, फेफड़ों में आखिरकार क्या होता है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इन पल्मोनरी कैपिलरीज, यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, लंग्स की अपनी कैपिलरीज होती है, तो वहाँ पर ब्लड लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेन्स ऑक्सीजन। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए से ही हायर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन हियर मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द deoxygenated blood and the oxygen level is in the capillaries of the lungs. That means there is an exchange of blood gases. That means blood loses carbon dioxide and gains oxygen in the lung capillaries. That means lungs act as a diffusing chamber and an exchange chamber. Means deoxygenated blood is exchanged with the oxygenated blood here, and in the capillaries the carbon dioxide is lost and oxygen is gained here. And from the lungs what happens, the lungs से फिर generate होती है pulmonary veins। पल्मोनरी वीन्स क्या काम करती है, ये पल्मोनरी वीन्स के ही जरिए अल्टीमेटली यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज करता है और गेन करता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करता है, और अल्टीमेटली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर इसलिए मैंने यहाँ पर रेड रखा है क्योंकि इट इज ब्राइट रेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स फ्रॉम लंग्स से फिर आगे पल्मोनरी वीन्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट होता है टू द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन्स एक्ट एज ए रूट, और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स एक चैनल एक्ट करती है फॉर द लेफ्ट एट्रियम टू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट होता है इन द लंग्स, और पल्मोनरी वेन्स ही एक्ट करती है एज ए चैम्बर्स और द पाइपलाइंस विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाता है तो इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ये इस काम क्या है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वी हैव टू सप्लाई, हार्ट को ये काम है दैट इट इज टू बी सप्लाइड टू द बॉडी फॉर टू कैरी आउट द वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। जो एरोबिक प्रोसेसेस होते हैं जिनकी ऑक्सीजन जहाँ जहाँ नीड होती है, वो प्रोसेस को कैरी करने के लिए हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना पड़ता है बॉडी को। यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम एक्ट्स एज अ रिसीविंग चैम्बर फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम से ही ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम पंप करता है, विद द पंपिंग एक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ब्लड इज
blood is passed to the left ventricle via the bicuspid valve. यहाँ पर एक वैल्यू गार्ड करता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल नोन एज द बाइकस्पिड वैल्यू. यही बाइकस्पिड वैल्यू रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल ही एक मेन चैम्बर होता है जिसकी वजह से जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है द मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ओकर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल में द मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती है, जिसकी वजह से, जिन पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो भी ब्लड प्रेशर ऐसा बन जाता है कि सारा ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट होता है वाया द आयोटिक वैल्यू. आयोटिक वैल्यू क्या, कौन सा वैल्यू है? दैट इज गार्डिंग द आयोटा. जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा है इसके बीच में एक वैल्यू है जिसको हम आयोटिक वैल्यू कहते हैं. इसका प्रेशर ओवरकम होता है बाय द पावरफुल कंट्रैक्शंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और अल्टीमेटली ब्लड चला जाता है इनटू द आयोटा. आयोटा में फिर पार्ट्स होते हैं, दैट इज असेंडिंग आयोटा. असेंडिंग आयोटा से ही ब्रांचेस जाती है कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है टू द हार्ट एंड देन blood supply to the heart, ascending aorta, arch of aorta, and finally descending aorta. And the systemic arteries, ultimately the blood is carried to the different parts of the body and via the systemic arteries systemic circulation हो जाती है और blood is अल्टीमेटली ब्लड कहाँ पहुँचाया जाता है? टू द बॉडी सरफेसेस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ ही न्यूट्रिएंट सप्लाई भी होती है. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ यह है दैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी पावरफुली. जो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करते हैं और आयोटिक वैल्यू का जो प्रेशर है वो ओवरकम करके आयोटा में सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड को पावर करता है. अल्टीमेटली जब हमने देखा कि आयोटिक सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड आ जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर सिस्टमिक कैपिलरीज जो जिस आर्गन में जो आर्टरीज है दे आर देन डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स इनटू स्मॉल एट्रियोल्स एंड देन फाइनली इनटू द कैपिलरीज. और यहाँ पर फिर कैपिलरीज में फिर से एक प्रोसेस होता है दैट इज ऑक्सीजन इज लॉस्ट. ऑक्सीजन यहाँ पर लॉस होता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ पर वो जनरेट हुआ होता है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इज बैक कैरियड बाय द ब्लड एंड देन अगेन दिस प्रोसेस occurs and systemic circulation via the venules blood is transport to the veins and ultimately to the superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus and back same into this process, into this circuit. Here we have discussed today that this मैंने पहले भी बताया this is a closed circuit. यहाँ पर जो राइट साइड का जो सर्किट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट राइट साइड, यहाँ पर हमने देखा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंपिंग स्टेशन बन जाता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड. मीन्स जो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड की जो सप्लाई थी वो अमाउंट था वो बन गया यहाँ पर द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड बाय द राइट साइड. लेफ्ट साइड का जो अमाउंट था वो दैट बिकम्स द इनपुट ऑफ द राइट साइड. इट वाज ऑल अबाउट द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. Today we discussed important things, that is first we discussed circulation, then we discussed what is systemic and pulmonary circulation, and whole process of systemic and pulmonary circulation was discussed. Thank you. It was all about this systemic and pulmonary circulation.